Good morning, students. Today we are starting another new topic, that is hydrodynamics. Hydrodynamics. It is basically the branch of physics which deals with fluids in motion. So as we know, we have discussed surface tension, that is a property of liquid at rest. Similarly, viscosity also, it is a property of the fluid in motion. In order to understand the concept of viscosity, let me take few examples. Water, oil, honey. So if they are flowing, out of which water can flow easily without any resistance within it. Whereas in comparison to water, slightly resistance will be offered by the layers of oil. Whereas honey is highly viscous. विस्कस माने सिंपल टर्म्स में कह सकते हो थिक है. अगर इसको आपको फ्लो कराना हो तो इट कैन नॉट फ्लो easily as water. So basically what we conclude from comparison of these examples, that most of the liquids, when they are in motion in the form of the layers, then different layers will have different velocity. It means when the liquid is flowing, so there is some resistance यानी फ्लो करने को ऑपोजिशन मिल रही है. सो ए रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले विच टेंड टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. सो दैट internal friction force, this resistance is an internal friction of the fluid, that is taken as the concept that we are discussing under viscosity. मान लो आप एक कंटेनर लें, एक ग्लास लें, ठीक है. अब उसमें हम कोई लिक्विड लें, वाटर लें, ऑयल लें या हनी लें. अगर हम लेते हैं कि डिफरेंट लेयर्स, यहाँ पर जो डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड की, वो मूव करेगी. आप एक स्टरर की हेल्प से, एक स्पून की हेल्प से इसको स्टर कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो बिल्कुल साथ वाली लेयर्स हैं, जॉइनिंग लेयर्स हैं, इनकी स्पीड ऑफ स्टरिंग, स्पीड ऑफ रोटेशन फास्टेस्ट होगी. लेकिन जो लेयर्स दूर हो गई हैं उनकी स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाएगी. ठीक है. तो बेसिकली डिफरेंट लेयर्स हैविंग डिफरेंट रिलेटिव स्पीड, दिस इज द कॉन्सेप्ट वी आर डिस्कसिंग. सो विस्कोसिटी में हमें पहले यही पॉइंट को समझना है कि विस्कोसिटी का वजह क्या है, विस्कोसिटी एक्चुअली है क्या, और उसका कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉज क्या है. सो विस्कोसिटी एक तरह से हम कह सकते हैं एक अपना इसके अंदर, लिक्विड के अंदर का इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विस्कोसिटी, इट इज the property of fluid. Fluid can be liquid or gas, by virtue of which an internal frictional force comes into play when fluid is in motion in the form of layers. So in simple terms we can say this viscosity, that it opposes the relative motion of different layers. So this is the basic definition of viscosity. This viscosity is also called fluid friction. Another name we can give to it, fluid friction or viscous drag of the fluid. Why it is called so? Because it opposes the relative motion of different layers. Now, what is the basic cause of it? Actually, as we have observed, as we have explained, that their liquid is flowing in the form of different layers, और हर layer की speed अलग अलग होती है. Then every fast moving layer, बेसिकली जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हमारे पास ये लिक्विड इस ग्लास में मूव कर रहा है, तो सेंट्रल लेयर जहाँ स्टीयरिंग शुरू हुई है उनकी स्पीड मैक्सिमम है, और जो उसके बाद बाहर की तरफ लेयर्स हैं उनकी स्पीड कम है. तो जो फास्ट मूविंग लेयर है वो एडजॉइनिंग स्लो मूविंग लेयर की स्पीड को इंक्रीज करेगा, और स्लो मूविंग लेयर टेंड टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ फास्ट मूविंग लेयर. दिस इज द बेसिक
cause due to which viscous force arises. So what we will write here? So we can say that every fast moving layer tends to influence slow moving layer, and every slow moving layer influence fast moving layer. It means here this viscous force is produced between different layers, और वो क्या करता है? which tend to destroy the relative motion. इट मीन्स विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कहते हैं कि हर एक लेयर यानी एवरी फास्ट मूविंग लेयर डिस्ट्रॉयज द मोशन ऑफ स्लो मूविंग लेयर एंड एवरी स्लो मूविंग लेयर डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ फास्ट मूविंग लेयर. तो सिंपल टर्म्स में कैसे कह सकते हैं कि द विस्कस फोर्स इट इज प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द लेयर्स विच टेंड टू डिस्ट्रॉय relative motion of layers of liquids. So अगर हमें layers का motion maintain करना होगा then we have to apply a force equal to viscous force that has to be applied tangentially. Now here if we have to obtain mathematical formula for this viscosity, basically देखिए हर लिक्विड की अपना एक viscosity का measurement scale होता है जिसको हम term देते हैं coefficient of viscosity. जैसे वाटर की विस्कोसिटी कम है, हनी ज़्यादा विस्कस है, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा सिंबल से. कैसे? एन की लेग थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देते हैं. दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ हम एक रिजल्ट फॉर्म लेके चलेंगे कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इन अ फ्लोइंग लिक्विड stress is proportional to rate of change of strain. यूजुअली हम सॉलिड्स में क्या कहते हैं? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन लिक्विड्स में हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन. यू हैव टू यूज इट एज अ रिजल्ट. सो फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड अगर हम कहें दैट इज रेट ऑफ, दैट इज स्ट्रेन रेट अगर हमें निकालना हो तो बेसिकली इट इज टेकन एज चेंज इन shear strain कह सकते हैं डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. तो shear strain अगर हम लें डेल एक्स अपॉन एल डिवाइड बाय डेल टी, यानी डेल एक्स अपॉन डेल टी डिवाइड बाय एल, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ. जैसे कि इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या ले सकते हैं कि मान लो ये दो लेयर्स हैं, इनके बीच में मान लो हम ये कहते हैं कि लिक्विड फ्लो कर रहा है और स्लाइटली जैसे हम shear strain को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि टॉप लेयर को मान लो हम डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं और हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स अमाउंट से करते हैं. यानी अगर हम मान लो ये लें कि टेक अ फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल ग्लास प्लेट्स, कीप द बॉटम प्लेट फिक्स्ड एंड मूव द टॉप प्लेट बाय अप्लाइंग सम टेंजेंशियल फोर्स with a constant velocity when it is moving with a constant velocity. So इस केस में जो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया जो कि नेग्लिजिबल स्मॉल है डेल एल डेल एक्स अपॉन एल, दिस इज टेकन एज चेंज इन shear strain. So just we are just taking the formula directly without giving it much explanation part. So अब shearing स्ट्रेस क्या होगा? shearing stress बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? shearing stress is force per unit area. तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हमने क्या कहा? दैट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ shearing stress to the strain rate, change of strain per unit time. तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ.
अब v अपॉन एल एक्चुअली क्या है? वेलोसिटी इज वेरिंग विद द लेंथ, जिसको हम टर्म यूज कर सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. एनी क्वांटिटी varying with the distance or length, that is termed as in terms of gradient. So this is velocity gradient, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. So अब इसको रीअरेंज कीजिए तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, here v into L, और फोर्स पर यूनिट एरिया dv upon dx. This is the formula for coefficient of viscosity. Now if we want to define this coefficient of viscosity in terms of this force, then what to do? So for it, if A is taken to be unity and velocity gradient is also 1, then you can see coefficient of viscosity equal to tangential force. So how can we write it in language? That coefficient of viscosity of a liquid is equal to the tangential force required to maintain a unit velocity gradient between two parallel layers of liquid, each of unit area. This is the way how we can define coefficient of viscosity to be equal to tangential force. Now on this basis we can define unit of coefficient of viscosity. See, basically if we take SI unit of coefficient of viscosity, it is taken to be 1 Poiseuille, represented symbolically as PL, or it can also be taken as Pascal or Newton per meter square second, or we can take another unit. Actually जो ये मैं unit ले रही हूँ, these are all formula based. So अब अगर आप इस फॉर्मूले में देखते हैं, this is force per unit area dv by dx, यानी हम फोर्स को अगर हम न्यूटन की फॉर्म में लिखते हैं तब इस तरह का फॉर्मूला आएगा. अगर फोर्स पर यूनिट एरिया लिखते हैं प्रेशर, तो पास्कल की फॉर्म में आएगा. वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू यानी इस टर्म्स में हम यूज़ कर रहे हैं. और अगर हम फोर्स को भी मास इंटू एक्सेलरेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब इस तरीके से. यानी कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई द क्वांटिटी having unit, this दे दें, this or this or this. So you have to prepare it both the ways. Now how can we define SI unit? So coefficient of viscosity of liquid is said to be 1 Poiseuille if 1 Newton tangential force is required to maintain velocity gradient of 1 meter per second per meter. Velocity का unit meter per second and distance that is divided by meter between two layers each of area unit, that is 1 meter square. So ये condition हो गई. अब इस पे हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हैं coefficient of viscosity of a liquid is said to be 1 Poiseuille if 1 Newton tangential force is required to maintain velocity gradient of 1 meter per second per meter between two parallel layers of liquid, each of
area 1 meter square. And if we have to take its CGS unit क्या होगा? This will be dyne centimeter minus 2 into S, or poise. And if we will establish relationship between Poiseuille and poise, it is 1 Poiseuille is 10 poise. कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप चाहें तो हम बता सकते हैं. 1 Poiseuille क्या होता है? अगर हम लिखें 1 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड. 1 न्यूटन क्या होता है? 10⁵ डाइन. मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखें तो 100 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू सेकेंड. तो अब यहाँ पर इसे आप सॉल्व करेंगे. ये हो गया 10⁻⁻4 और ये है 10⁻5, क्योंकि पावर -2 है तो ये हो गया 10 डाइन. यू कैन टेक इट एज सेंटीमीटर माइनस 2s. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 poise. तो डायरेक्टली मैंने ये रिजल्ट दिया था. 1 Poiseuille इज 10 poise. बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव गिवन इट टू सिंप्लीफाइड फॉर्म. So now, as we know that viscosity is kind of internal friction force that exists in between layers of the liquid. Now we will discuss the difference between these two. First of all, let we understand what are the points of similarity. As both comes into play whenever there is relative motion. यानी जब तक मोशन की बात नहीं होगी तब तक हम फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं कर सकते. सो सेकेंड, बोथ ऑपोजेस रिलेटिव मोशन. बोथ ऑपोजेस रिलेटिव मोशन. बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस. मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है. And both act tangentially in a direction opposite to motion. So these are some points that is giving that both are opposing the motion and what can be the cause for it and where it acts. अब हम करते हैं what can be the point of difference. See that viscous force जब हम निकालते हैं it is depending upon area of layers. This viscous force it depends on सबसे पहले area of layers. Second, relative velocity of layers. Distance between the layers. So these are the points where viscous force depends. Whereas friction force, normal friction force, it is independent of. This is area of surfaces in contact. This is independent of area of surfaces in contact. Second, relative velocity. इसके भी independent है. The relative velocity of the different layers between surfaces. And solid friction, this is the solid friction. This is directly proportional to normal reaction. जबकि जो viscous force है it is independent of normal reaction between different layers. So these are few points of differences. So although we know that friction comes in between different layers, अगर हम सॉलिड फ्रिक्शन की बात करते हैं तब भी जब बॉडी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में है और मोशन है तभी उसके बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है. ऐसे ही लिक्विड की लेयर्स में भी लिक्विड के बीच में जो अपोजिंग फोर्स है, यानी लिक्विड जब मोशन में आता है तो कुछ लेयर्स ज़्यादा स्पीड से मूव कर पाती हैं, कुछ लेयर कम स्पीड से, तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस अपोजिशन के लिए. तो एक तरह से दोनों ही अपोजिंग फोर्स हैं, दोनों ही फ्रिक्शनल फोर्स हैं. नाउ after this next we are discussing Poiseuille formula.
Poiseuille formula, basically this is a formula that will give the relationship of rate of flow of liquid through a tube, through a pipe. अब इसके लिए सबसे पहले हम ले, मान लो वी आर टेकिंग एनी हॉरिजॉन्टल ट्यूब. Right? Now, when liquid is flowing through this horizontal tube with a steady flow under some external pressure, जब तक यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा, दोनों एंड्स पे प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, तब तक लिक्विड इसमें से फ्लो नहीं होगा. देखिए, अगर आप देखते हैं कि मान लो वाटर टैप से आता है, तो यानी जो पाइप है, जो ट्यूब है, उसमें से दोनों एंड पर प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से पानी नीचे आता है. ऐसे ही मान लो वाटर हैज़ टू बी पम्प्ड अप. अगर आप मोटर की हेल्प से वाटर को टैंक में फिल करते हैं तो वहाँ भी प्रेशर डिफरेंस बनाया जाता है, तभी वो वाटर ऊपर लेवल पे यानी हाइट पर टैंक में चला जाता है. अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, अगर इसमें लिक्विड को फ्लो करना है तो इसका मतलब जब तक दोनों एंड्स पर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, लिक्विड फ्लो नहीं हो सकता है. So when some pressure difference is maintained, automatically हम जब यहाँ बात कर रहे हैं लिक्विड फ्लो की, it means कुछ pressure difference maintained है. So when some pressure difference is maintained, liquid will flow in the form of layers. अब हमने सिलेंड्रिकल पाइप ली है तो हम ये लेके चल रहे हैं, मान लो कि बहुत सारी लेयर्स की फॉर्म में लिक्विड मूव कर रहा है. इनर मोस्ट लेयर जिसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और आउटर मोस्ट लेयर जिसकी स्पीड कम होगी. तो हम ये कह रहे हैं here liquid is moving in the form of, यानी मान लो लिक्विड इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो लिक्विड मूव्स इन अ सिलेंड्रिकल लेयर्स कोएक्सियल विद एक्सिस ऑफ द ट्यूब. अब इसमें सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, देखिए लेयर्स लिक्विड के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ कोहेजन है, और यानी सेंट्रल लेयर्स के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है. लेकिन जो लेयर बिल्कुल एक्सट्रीम यहाँ एंड पॉइंट्स पर है, जो वॉल्स के साथ साथ मूव कर रही है, वहां पर क्या है, एक ऑपोजिशन जनरेट हो रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ एडिशन है, एडिसिव फोर्स वर्क करता है. सो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेयर यानी सेंट्रल लिक्विड लेयर is having maximum speed, and it goes on decreasing when we are moving towards the wall. We are not moving, like we can say कि liquid अगर wall की तरफ जा रहा है, यानी wall की साइड पे जब liquid move कर रहा है, ट्यूब की साइड पर जो move कर रहा है, वहाँ speed decrease होती है. Velocity is minimum for the layer in contact with the wall. Why? Because adhesive force is working on it. So that's why we simply say that velocity of central liquid layer is maximum and velocity of liquid layer towards wall of tube, this is minimum. So different layers is having different velocity. Poiseuille studied this rate of flow of liquid through a horizontal tube, and he concluded that volume of liquid flowing per second through the capillary tube, this is directly proportional to pressure difference, that is must, pressure difference across two ends of the tube, जो हमने फर्स्ट कंडीशन ली है कि लिक्विड फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस. Fourth power of radius, that is r raised to the power 4, and it is inversely proportional to length of the tube. मान लो अगर हम L लेंथ ले लेते हैं, so it is inversely proportional to this. So combine करें, volume is proportional to pressure difference, also proportional to fourth power of radius, and inversely proportional to length of the tube. Apart from it, this volume of liquid flowing is also proportional to, also inversely proportional to, you can say inversely proportional to coefficient of viscosity. So inversely proportional है इस तरीके से. तो when its proportionality sign is removed, तो directly हम result लिखते हैं, this is pi by 8 p r4 by eta l.
So this is the volume of liquid flowing per second. This is known as Poiseuille equation. And it is true only for steady flow of liquid, especially for the steady flow of liquid. सो देखिए पॉइजली फॉर्मूले को ज़्यादातर फॉर्म में सिंपल हमें ये कंडीशन समझनी है. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन सम प्रेशर डिफरेंस इज मेंटेन्ड हियर. So this volume of liquid flowing per second, it is proportional to pressure difference, also proportional to fourth power of the radius, inversely proportional to length of this tube, as well as inversely proportional to coefficient of viscosity. जब इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है दिस वन. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम डायरेक्टली लर्न करते हैं क्योंकि हम इसके डेरिवेशन में भी डायमेंशनल एनालिसिस से जब इसका डेरिवेशन करते हैं तब भी हम इसकी वैल्यूज में नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं. सो लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. अब आता है एक पॉइंट कि अगर आपको बोला जाए कि डिराइव पॉइजली इक्वेशन, डिराइव पॉइजली फॉर्मूला, देयर इज ओनली वन मेथड विच यू हैव टू लर्न, दैट डेरिवेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस. अगर आपको ध्यान हो यूनिट 1 में डायमेंशनल एनालिसिस से हमने इस रिलेशन को डिराइव किया है, जिसमें आप देखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी बोल सकते हैं या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, जिसमें वहाँ पर डेरिवेशन में हमें 3 पैरामीटर्स गिवन होने चाहिए, पर यहाँ 4 पैरामीटर है. तो यहाँ पर हम प्रेशर ग्रेडियंट वर्ड यूज़ कर लेते थे. तो आपको ध्यान होगा कि इसका डेरिवेशन करते टाइम मैं जस्ट रिकॉल करा रही हूँ. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट रेज टू द पावर ए, रेडियस रेज टू द पावर बी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू द पावर सी. फिर इसको सॉल्व करके हम ये प्रॉपर रिलेशन यहाँ तक पहुँच जाते हैं. तो यहाँ पर मैं इस रिलेशन को दोबारा नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये हम यूनिट 1 में न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं. तो ध्यान रहे कि अगर पूछ लिया जाए डिराइव पॉइजली इक्वेशन, तो डोंट गेट कंफ्यूज. पॉइजली इक्वेशन को हमें डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुडे वी हैव इंट्रोड्यूस्ड liquid in motion, basic concept of viscosity and Poiseuille equation. Revise the concepts thoroughly. Now in the next video we will take next topic that will utilize all these concepts we have studied. Thank you. Have a nice day.